Hello friends, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn about Jacobi symbol, paper number 3. Now students, first of all, we will define Jacobi symbol. If a is any integer and n is a natural number, then we define Jacobi symbol a upon n. Its value is 1 if n is equal to 1. If GCD of an is not equal to 1, then its value will be 0. And if GCD of an is equal to 1 and we write n as a product of prime numbers, then it can be written as a upon p1 ki power a1, a upon p2 ki power a2, so on. Now look at the example. This is a upon minus 10 upon 1. So here n is equal to 1. So its value will be 1 using the first one. 15 upon 100. As GCD of 15 upon 100 is not equal to 1, so its value will be 0 according to second one. Third one, 5 upon 561. GCD is here 1 and we will factorize 567. 3 is to 4 into 7. So according to this, it will break 5 upon 3 to power 4 and 5 upon 7 is power 4. According to this, A at 1, this is A2. So now we can simplify. This is 5 by 3 is 1. 4 power is 1. So 5 by 7 only left. So using the Gauss reciprocity law, we will convert it to 7 by 5. So this is the 1 since it's an even number. So 2 by 5 is always 1. It's a quadratic non-residue of 5. Now we have the properties. If a upon mn, we can write it as a upon m into a upon n. Let us suppose mn is equal to 1, their product. So m will be 1, n is equal to 1. So since m, n and mn all are equal to 1, so we will must know that a upon mn, a upon m, a upon n, all values will be equal to 1 as n is equal to 1 using the definition of Jacobi symbol. So I can write a upon m, a upon n is equal to 1 into 1 is equal to 1 and 1 is equal to a upon mn. If the GCD is not equal to 1, then their GCD of A or M is also not equal to 1 and GCD of AN is not equal to 1. Okay, so it will be 0, it will be 0, it will be 0. According to the second definition of Jacobi symbol, if GCD is not equal to 1, then A upon N is equal to 0. So since this is equal to 0, so both sides are equal. If the GCD is equal to 1 and we can write M as a product of prime numbers M or N, then how can we prove it? Now Mn, if we multiply, since M is the P1 alpha 1 P2 alpha 2 and N is P1 beta 1 P2 beta 2, when we multiply the powers of prime numbers get added, then we take a upon mn. So it is a upon p1 first power alpha 1 plus beta 1, second power a upon p2 alpha 2 beta 2, and third power last power is a upon pr alpha or br. Okay, then now we will separate the powers. Alpha अलग कर लेंगे, beta वाली अलग कर लेंगे. So what is this? This is a upon m, this is a upon n. So very easy to prove. Similarly you can prove other property. जैकोबी सिंबल में ये फर्क है कि यहाँ पे जो n और m है, n और m है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पर जो लेजेंडरी सिंबल था वहां पे वो प्राइम नंबर होता था, नीचे a अपॉन p होता था. तो ये फर्क है जैकोबी और लेजेंडरी सिंबल में भाई यहाँ पे. अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर क्यू ऑड नेचुरल नंबर है, आर्टिकल है, तो जो माइनस वन बाई क्यू है इसकी इक्वल होएगा. आपको ये शो करके दिखाना है. तो सबसे पहले हम लेमा करेंगे कि अगर p ऑड प्राइम है, तो पहले हम प्राइम नंबर के लिए प्रूव करेंगे. जो भी रिजल्ट होएगा माइनस वन बाई पी इसकी इक्वल होएगा. अब आपको पता है अगर p प्राइम 4k प्लस 1 टाइप का है, तो माइनस वन जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है माइनस वन बाई पी इक्वल टू का. ठीक है. अब आपको पता माइनस वन की पावर p माइनस वन बाई टू ले लेते हैं हम. तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कीजिए 4k प्लस 1, तो सॉल्व करके इवन नंबर आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है जी. और हमें ये भी पता है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो माइनस वन की पावर p माइनस वन बाई टू की वैल्यू 1 है. तो दोनों आपस में ये इक्वल हो गए अगर p 4k प्लस 1 टाइप का है. अगर p 4k प्लस 3 टाइप का होता है तो माइनस वन नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस वन के इक्वल होती है. फिर आप क्या करोगे, माइनस वन की पावर p माइनस वन बाई टू की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे p की वैल्यू पुट करके वो भी माइनस वन आ जाएगा. तो ये भी माइनस वन है, ये भी माइनस वन है, तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों आपस में इक्वल हो गए. इट मीन्स बोथ केसेस में माइनस वन बाई जो p है इसके इक्वल है माइनस वन की पावर p माइनस वन बाई टू.
ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्यू एक जनरल नंबर लेते हैं। मान लीजिए क्यू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दी गई, सब अलग अलग हो गए। अभी आपको प्रूव करके दिखाया गया लेमा में, जो -1/p है दैट इज इक्वल टू -1 की पावर p1 इज 1 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर लेगी यूजिंग लेमा। अब ये सारे नंबर्स की पावर ऐड होकर आपके पास ये नंबर 1 आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं, एक चीज लीजिए p1 p2 -1/2, ये आपको याद रखना है, माइनस ये आपको एक्सप्रेशन याद करना है। ठीक है। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है, सॉल्व करके ये आपस में कट जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके फैक्टर 1 कितना आ जाएगा आपके पास। अगर मॉड्यूल 2 करेंगे, क्योंकि p ऑड नंबर है, तो p -1 इवन हो गया है, ये भी ऑड है, ऑड में से माइनस करोगे तो इवन आ जाएगा। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो जीरो मॉड्यूल आ गया, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज अ जीरो मॉड्यूल 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे p1 p2 p3 करेंगे, तो ये जो हमारी चीज है ना, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे p1 p2 p3 कर देंगे, तो वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा आपका। सिमिलरली अगर p1 p2 pr कर देंगे, वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा आपके। ठीक है। अब जो p1 p2 pr ये क्या था, ये क्यू था, तो क्यू इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया आपका। ठीक है। तो -1 की पावर क्यू -1/2 इसके बराबर हो गई। इसको क्यू की जगह माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देगी ये वाली। ठीक है। तो फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन में आपने -1/क्यू की वैल्यू निकाल के रखी थी, तो फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन में -1/क्यू की वैल्यू भी आपके पास इतनी है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है जी। यहाँ पे आपका क्यू आना है। नेक्स्ट भी अगर हमारे पास क्यू और नेचुरल नंबर, तो आपने ये प्रूव करके दिखाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जब क्यू होता है ना, क्यू एनी नंबर हो सकता है, तो पहले आपने प्राइम नंबर के लिए करके दिखाना है। मान लीजिए लेमा करेंगे कि जो 2/p है इसके इक्वल होएगा अगर p आपका ऑड प्राइम है। तो दो तरह की टाइप हो सकती है ऑड की, या तो 8k+1 टाइप होएगा या 8k+3 टाइप होएगा। ठीक है। तो अगर वो 8k+1 टाइप होता है ना, तो 2/p क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है, ये पीछे हमने काम किया हुआ है। तो -1 की पावर p² -1 के बराबर करना हमें, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ठीक है जी। a² + b² + 2ab सॉल्व करके ये 1 से 1 कट गया, तो ये सारा इवन नंबर, ये 1 आ गया। तो ये भी 1 के इक्वल है, तो ये भी 1 के इक्वल है, दोनों बराबर हो गए आपस में। इसी तरह अगर p 8k+-3 टाइप है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, तो ये -1 के इक्वल आएगा। तो इसकी वैल्यू अगेन उसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी p² की, तो सॉल्व करके -1 आ जाएगा। तो फ्रॉम बोथ केसेस वी गेट 2/p = 2 आ गया। जैसे पिछला आर्टिकल किया था वैसे ही करना है अब आपने। क्यों, मान लीजिए p1 p2 आ रहा है, यहाँ पे पुट किया, उसको अलग अलग कर लिया। अब 2/p की हमने वैल्यू यूज करनी है, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके सभी पावरें ऐड होगी, ये नंबर 1 इक्वेशन आपके पास आ गई। जैसे पीछे किया था ना p1 p2 -1/2, तो यहाँ पे आपने करना है p1² p2² -1/8। ये एक्सप्रेशन लेके चलना है, इसका एलसीएम लेके ये मॉड्यूल 2 कर देना है आपने। ठीक है जी। तो इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू मॉड्यूल 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना, उधर के प्लस, ये जीरो आ गया ना, देखो यहाँ पे, ये उधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके दोनों चीजें, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। सिमिलरली अगर 3 लोग हैं, p1² p2² p3², तो वो तीनों का प्लस करके मॉड्यूल 2 हो जाए। इसी तरह जब r नंबर ले लोगे, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट चल रहा है मल्टीप्लाई वाला, तो मॉड्यूल 2 आ जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज क्यू। क्यू² -8 इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया आपके। ठीक है, इस चीज के। तो वो -1 की पावर कर दोगे जब इसको, तो वो -1 की पावर ये बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, आपने पीछे प्रूव भी किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये देखो पढ़ा, नंबर 1 इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 2/q। तो ये आपका 2/q के इक्वल आ गया, तो ऐसे आपका प्रूव होगा रिजल्ट। ठीक है जी। बिल्कुल शांत होने थे। अब हमारे पास है जनरल क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। जो हमने पहले किया था क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, वहां पे वो प्राइम नंबर्स थे आपके पास। ठीक है, वो अपने ध्यान रखना कि a और p तो प्राइम नंबर है। अब m और n कोई भी नंबर हो सकता है, और नेचुरल नंबर। तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी लॉ हमने प्रूव करके दिखाना है। मान लीजिए m प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, n भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। तो पहले मैं m/n लेता हूँ, नीचे पहले मैंने n की वैल्यू पुट कर दी गई। ये जैकोबी सिंबल की प्रॉपर्टी है, m/a/b वो हो जाएगा m इंटू a m/b। ये प्रॉपर्टी की ना भी है मैंने, m/ab इज इक्वल टू m/a m/b। इस प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो गया।
फिर ऊपर m की वैल्यू पुट कर दी कि P1 P2 PR P1 P2 P, ये उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग हो गए, इस तरह अलग अलग हो गए। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ऊपर PI लिख लो, नीचे QJ लिख लो, I की समेशन होगी 1 to R, J की होगी 1 to P, यहाँ पे T आएगा। इसी तरह अगर आप उल्टा निकालोगे n over P, तो वहां पे QJ PI आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, जैसे हमने प्रूफ करना है थ्योरम में, मल्टीप्लाई कर दिया गया, प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया गया। अब दोनों ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के लिए गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ हमारे पास लगाना आता है, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p - 1/2 q - 1/2। ठीक है जी। अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जाके समेशन बन जाएगा। ठीक है, तो समेशन अलग अलग कर दी गई, उस पे r उस पे j। पहले ये i वाला r वाला अंदर ले जाएगी, इसको जब ओपन करोगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज है, ये इकट्ठा कैसे बन जाता है। ठीक है, तो P1 P2 PR जो है उसकी वैल्यू m है, तो इसके m - 1/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई -1 की पावर m - 1/2। तो वो वैल्यू पुट कर देगी। अब ये क्यू अंदर ले जाओ और उसको बाहर ले जाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावरें ऐड होगी। अभी ये पीछे थर्ड प्रॉपर्टी से वही पावरें ऐड होंगी, n बन गया, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका करना। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे लगेगी, जैसे हमने वहां पे किया किया था, ये हमारा फार्मूला आ गया, दोनों तरफ n बाई m से मल्टीप्लाई कर, तो ये स्केयर होगा, स्केयर आपको पता 1 होता है, तो m ओवर n को हम उल्टा करके लिख सकते हैं n बाई m -1 की पावर m - 1/2 n - 1/2। देखो जनरल कॉस्ट रेसिप्रोकल तब लगता है जब कोई भी नंबर हो जाए, इंटीजर m और n, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर आ जाए, ऑड नेचुरल नंबर, वहां पे ऑड प्राइम नंबर है। जैसे ठीक है, समझे मेरी बात, क्या फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है जिसके प्राइम नंबर फैक्टर्स आगे बनेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं यूजिंग जनरल क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल लॉ, इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये शो करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। सॉल्वेबल के लिए क्या होता है, a अपॉन p आपका 1 आना चाहिए। अगर a अपॉन p 1 आ गया तो वो सॉल्वेबल होती है, अगर a अपॉन p -1 आ जाए तो वो नॉन सॉल्वेबल होती है। ये हमने किया हुआ है। तो ये हमारा m ओवर n हो गया, ये उसको उल्टा दिया गया, प्रॉपर्टी लगा दी गई। ठीक है, ये इवन नंबर बन गया तो प्लस हो गया। अब ये 11052 231, इसको 231 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 181। फिर इसको उसने रिवर्स कर दिया ला लगा के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये इवन नंबर बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब 231, ठीक है, 231 को आप 50 से 181 से डिवाइड करोगे तो 50 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है। अब 50 के फैक्टर बना लीजिए 255, जो तो स्केयर होता है वो 1 बन जाता है, ये तो 1 हो गया, 2 अपॉन 181 आ गया। अब जो नीचे ये p है, हमको पता है अगर p 8 के प्लस -1 टाइप हो तो वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है, अगर 8 के प्लस 5 टाइप हो तो नॉन रेसिड्यू होता है। ये सारे आपको याद रखने, 2 बाई पी, 3 बाई पी और 5 बाई पी। बेसिकली 2 बाई पी और 3 बाई पी याद कर लो कि 2 बाई पी कब क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है और 3 बाई पी कब क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है। तो यहाँ पे ये -1 आ गया, सो इट इज अ नॉन सॉल्वेबल। इसी तरह ये क्वेश्चन है, जब भी ऊपर नेगेटिव आ जाए ना तो हमेशा नीचे वाला नंबर उसमें ऐड कर दिया करो, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इतना आ गया। अब इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा नहीं करना तो पहले इसके फैक्टर बना लिए, 231 दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, तो इसको उसने उल्टा कर लिया, रेसिप्रोसिटी ला लगा के इसको 31 से डिवाइड किया, ये 4/31 आ गया। फिर इसको उल्टा कर लो, इसको फिर चेक कर लो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 8 के प्लस 1 बन रही है कि 3 बन रही है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आंसर दे देगा। तो बड़ा आसान काम है। एक क्वेश्चन और करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्वेबल। सॉल्वेबल वाला आपको क्लियर ही है कि a अपॉन p करना बस। ठीक है, a ओवर, ये आपका a है, ये आपका p है, तो कि m अपॉन अगर n1 आ जाए तो 2 into 5 फैक्टर बनाएंगे, दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया गया, तो इसको 5 वाले को उसने हमेशा उल्टा कर लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 127 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा। अब 127 जो है 8 के -1 टाइप है, 8 के प्लस माइनस में वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनता है। 2/5 भी आपको पता है 8 के -3 टाइप है, तो ये आपका नॉन रेसिड्यू होगा। तो 8 के +1 में वो पॉजिटिव होता है और 8 के +3 में वो नेगेटिव होता है, so it is a minus, so we say that it is a quadratic non-residue, so it is not soluble. Similarly you can do other part. So students, तो देखिए इसमें भी कैसे करना है, पहले इसको रिवर्स कर लिया गया, तो ये इवन हो गया, इसको 73 से डिवाइड करो, ये रिमाइंडर आ जाएगा, फिर इसको उल्टा कर लीजिए, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, इतना आ गया, फिर उसको उल्टा किया गया।
ठीक है। जनरली आपने 2 में कन्वर्ट करना होता है, जाके यहाँ पे 100 का कितना आ गया, फिर उसको डिवाइड किया 8 आ गया, फिर उसको रिवर्स 8 के फैक्टर बना लो, 2 2 2 3 टाइम्स हो गया, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया 19। इट इज ऑफ टाइप 8k प्लस 3। तो आपको इतना बताता हूँ, अगर 2p होता है ना, 2p ये 1 होता है अगर वो होता है टाइप 8k प्लस माइनस 1, और ये -1 होता है अगर ये 8k, ये हमारी बुक में है आर्टिकल, ठीक है, अभी पीछे भी किया है, इस प्रॉपर्टी में लेमा में किया था। इसी तरह 3/p का भी याद कर लो क्या क्या होता है, 5/p का, ज्यादातर 2/p और 3/p यूज होना आपका, ठीक है। तो अगर ये 1 आ गया तो सोल्वेबल हो जाता है proof। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। लेजेंडरी सिंबल, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज, पहले आप सीखिए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसकी सोल्वेबल हो, उसको करने का तरीका था। फिर मैंने पढ़ा लेजेंडरी सिंबल ए अपॉन पी, वो 1 होता है अगर वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो, अगर -1 होता है तो नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो। तो इसी तरह जैकोबी सिंबल जो है जनरल वे है, बड़ा आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव।